Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 5, Science, Standard 10th, and the name of the chapter is Periodic Classification of Elements. Now dear student, in this chapter we are going to learn about the order of arrangement which was made related to elements, how the elements are being arranged in proper order in the form of periodic table, and how one by one all these scientists pay their contribution, give their contribution in the making of this periodic table. Okay, that we are going to learn in this chapter in detail. So let's start with this word element. So what is element? Elements are those chemical substance which are obtained naturally, okay, or which are being made synthetically, okay, in the laboratory. Now there are total 118 elements available, okay, right now, out of which 94 elements, out of which 90, not 93, 94, it's 84. 84 elements are naturally occurring elements. Naturally occurring elements means, dear student, हमारे पास हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. उन 118 एलिमेंट्स में से 84 एलिमेंट्स हमें नेचुरली अर्थ में से मिलते हैं. अर्थ में से, दैट इज लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर में से मिलते हैं. ठीक है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम लेबोरेटरी में सिंथेटिकली बनाते हैं, ठीक है, बाय कैरिंग आउट वेरियस केमिकल रिएक्शन. Now whatever the elements are there, they are being classified into three categories, and these three categories are metals, non-metals and metalloids. ठीक है, metals means positively charged element, those elements which have a tendency to give electron during any chemical reaction, they are termed as metal. Non-metals are negatively charged elements which have tendency to gain electron during the chemical reaction, and metalloids are those elements which can behave as metal as well as non-metal. They have property of both metals and non-metals, but they are not completely having the property of metals and non-metal. Means some of the properties of metal and non-metal they are having, that's why they are known as metalloids. Okay, now dear student, the main thing which we are going to learn in this chapter is about the formation of periodic table and the order of arrangement which was made. In that we are going to learn in this chapter. So let's start with the first, okay, scientist who pay or who give its contribution in the making of this periodic table. So that was Daubeney. The scientist Daubeney has given triad rule. ठीक है, he has given triad rule. What was triad rule? Triad rule basically was whatever the elements was available at that time when Daubeney has made this rule. He tried to arrange the elements in the group of 3 elements. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, डियर स्टूडेंट्स. And he arranged the element in such a way that if you take the average of atomic masses, because whatever the element were arranged in this group were in the increasing order of the atomic masses, means the element with lower mass is put first, then with higher mass is put second, and one with the highest atomic mass is the third one. So this way he has arranged the element in the group of 3 in the order of their increasing order of their atomic masses. The logic behind this group of 3 element was that if you take the average of atomic mass of first and third element,
you will approximately get the atomic mass of the second element which was put between the first and the third element. Means the atomic mass of second element is approximately comes out to be the average of atomic mass of first and third element. Now take out page number 80. Just take out page number 80 in your textbook, dear students. In that table 5.1 you can see. In table 5.1 you can see the three groups are given to you, that is group A, group B and group C. In group B, nitrogen, phosphorus and arsenic are taken as a one group. In group B, calcium, strontium, barium are taken as a one group. And in group C, chlorine, bromine and iodine are taken as one group. Now in this table 5.1 he wants to do you one activity. He wants you to perform this activity in which you have to take the average of first and third element in each of this group and try to find out the atomic mass and check whether the average atomic mass comes out to be the atomic mass of the middle element or not. यानी आपको ये तीन तीन का जो ग्रुप दिया है उसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है. कैसे? आपको फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास को थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास से प्लस करना है और प्लस करने पे ये चेक करना है कि क्या जो सेकेंड एलिमेंट है, जो बीच में जो एलिमेंट दिया है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास आता है या नहीं, वो चेक करना है. ठीक है, सो लेट्स डू इट. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसमें अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 प्लस थर्ड एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास है 74.9. ठीक है, अब उसको इक्वल टू करके जो भी मास आएगा उसको 2 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट 44 पॉइंट समथिंग. आपको 44 पॉइंट समथिंग मिलेगा. पर यहां देखो जो फॉस्फोरस है ना उसका मास तो 31 है. सो नेचुरली ये जो ग्रुप है वो ट्रायड रूल फॉलो नहीं करता. बिकॉज ट्रायड रूल क्या कहता है कि यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट और उसका जो मास आएगा वो एक्चुअली सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास से टैली हो जाना चाहिए, जो यहां नहीं हो रहा. सो दिस इज नॉट अ ट्रायड. देन थर्ड वन इज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. अगर उसकी बात करें सो कैल्शियम इज 40 समथिंग प्लस थर्ड इज 137. ठीक है, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं. सो उसका जो एवरेज आता है वो है 88 समथिंग आता है. ठीक है, सो देखो 87.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 88 ओनली. सो देखो यहां जो एटॉमिक मास आया वो approximately same आया. So what we can say that this group number B is actually वो फॉलो कर रहा है. क्या फॉलो कर रहा है? तो ट्रायड रूल जो डॉबरनेर ने दिया था उसे फॉलो कर रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट? सिमिलरली अगर हम ग्रुप सी को देखें सो इन ग्रुप सी यू कैन सी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो अगर हम प्लस करना शुरू करें तो क्लोरीन विच इज द फर्स्ट एलिमेंट उसका एटॉमिक मास है 35.5 plus the last that is 126.9 is equal to 162 something आ रहा है. उसको डिवाइड बाय 2 करें सो आंसर कम्स आउट टू बी 81 समथिंग. सो देखो 79.9 is approximately equal to 80 and 80 and 81 are approximately very close to each other. So thus we can say that the group C is also following the group C है वो भी क्या कर रहा है? वो ट्रायड रूल फॉलो कर रहा है. सो दिस वे डॉबरनेर हैज गिवन द ट्रायड रूल बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट एवर द ट्रायड रूल गिवन बाय द डॉबरनेर इट वाज नॉट लॉजिकली एप्लीकेबल टू all the elements which were present at that time. It was applicable to fewer elements only. That's why this rule was ignored. It was avoided. ठीक है, because they formed it was just an accidental route. मन ऐसे गलती से मिल गया ऐसा रूल था. इसमें कोई भी ऐसा लॉजिकल कंसेप्ट नहीं था जो हम अप्लाई कर सके बिकॉज सारे एलिमेंट के जो ग्रुप थे वो इस ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करते थे. फिर उसके बाद न्यू साइंटिस्ट है दैट वाज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो जो न्यूलैंड साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, जैसे हमारा जो म्यूजिकल नोट होता है, ठीक है, म्यूजिकल नोट क्या होता है? सा रे गा मा पा दा नी सा. तो जब हम सा बोलते हैं तो सा एक्चुअली क्या होता है? वो फर्स्ट म्यूजिकल नोट को टैली कर जाता है या कॉपी कर लेता है या मैच हो जाता है. तो उस तरह से न्यूलैंड ने क्या किया? ही ऑल्सो स्टार्ट अरेंजिंग द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास.
तो उसने एक एलिमेंट रखा, फिर सेकंड रखा, फिर थर्ड रखा, फिर फोर्थ, 5, 6, 7। लेकिन जैसे वो 8 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने जाता था तो भले उसका एटॉमिक मास इंक्रीज होता था लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो जाती थी। तो उस तरह से उन्होंने भी ये कुछ ऑक्टेव बनाया था, लेकिन अगेन जो सारे एलिमेंट्स थे अवेलेबल उस टाइम, सारे एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं करते थे। दैट्स व्हाई इस रूल को भी इग्नोर कर दिया गया, अवॉइड किया गया। फिर उसके बाद जो फाइनली जो एक नया पीरियोडिक टेबल आया, सो दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट मेंडलीव। ठीक है, सो मेंडलीव ने हमें फाइनल पीरियोडिक टेबल बना के दिया, विच वाज दिस पीरियोडिक टेबल। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड पीरियोडिक टेबल, एंड मेंडलीव वाज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज ही वाज द फर्स्ट जिसने सबसे प्रॉपर और जेन्युइन पीरियोडिक टेबल हमें बना के दिया था। सो व्हाट वाज द पिक्युलरिटीज, व्हाट वाज द पिक्युलरिटी ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, यानी जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया था उसकी क्या क्या खासियत थी। ठीक है, उसकी क्या खासियत थी, लेट्स सी दैट। अब देखो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर देयर। ठीक है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था तब खाली 63 एलिमेंट्स थे। एंड उसने क्या किया, व्हाट वर द 63 एलिमेंट्स थे, उसने उन 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स बनाए, एंड ऑन ईच कार्ड ही राइट डाउन द डिटेल ऑफ ईच एटम, ईच एलिमेंट। फिर उसको अपने घर का जो एक बड़ा सा वॉल था उसके ऊपर उसको चिपकाते गया इन दी इंक्रीजिंग, उसको अरेंज करता गया इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जब भी कोई भी एलिमेंट जिसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी किसी पहले वाले एलिमेंट से मैच हो जाता था तो उसको उसके ग्रुप में जाके वो रख देता था। इस तरह से उसने अरेंज करके ये ग्रुप बनाया, मतलब इस पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया। सो व्हाट वर द पिक्युलरिटीज ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल इफ वी सी, तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था इट वाज मेड, ठीक है, वहां जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए थे दैट वाज अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए थे दे वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेंडलीव ने एक केमिकल प्रॉपर्टी को भी एज अ फंडामेंटल बेस पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए यूज किया था। व्हाट वाज दैट केमिकल प्रॉपर्टी, it was the chemical property that is reaction with oxygen and hydrogen, because whatever the elements available at that time, majority of elements are easily able to do reaction with oxygen hydrogen। सारे element hydrogen और oxygen के साथ reaction करते थे, and based on that reaction he makes some formula for each of the element for their oxide and hydrides, because when any element react with oxygen the resulting compound formed is known as oxide of that metal. Similarly, when any element react with hydrogen the resulting compound form is known as hydride. So हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन करके कोई ना कोई एक केमिकल कंपाउंड बनाता था जिसकी खुद की एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होती थी। तो उसने देखा कि कितने एलिमेंट उस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, कितने एलिमेंट की फॉर्मूला एक जैसी है, कितनों की अलग है। ऐसे करते करते उनको केमिकल प्रॉपर्टी वाइज उसने अलग कर दिया और इस तरह से ग्रुप पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, यू कैन सी कि उसकी जो पिक्युलरिटी थी वो ये थी उसकी जो अचीवमेंट्स की बात करें हम, ठीक है, फर्स्टली कि उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए थे। उन्होंने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया था। 8 ग्रुप मींस दी वर्टिकल जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको यहाँ, दोस वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, एंड दी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो दिख रही है आपको दे आर नोन एज पीरियड्स, उन्हें पीरियड्स कहते हैं। तो ऐसे 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे जिसमें मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, और हर एक ग्रुप के अंदर उसने ए बी करके अलग अलग कॉलम्स बनाए थे जिसके नीचे यू कैन सी द वेरियस एलिमेंट्स हैज रिटन। ठीक है, अब मेंडलीव को क्यों जीनियस बोला जाता था, व्हाट एवर द पीरियोडिक टेबल फॉर्म बाय मेंडलीव, ठीक है, इट वाज द वर्क ऑफ एक्सपर्टीज। ऐसा क्यों बोला जाता था, बिकॉज क्या हुआ था कि उस टाइम सारे साइंटिस्ट में एक होड़ लगी थी, एक क्रेजीनेस आ गया था कि पता था कि कोई भी अगर हम न्यू एलिमेंट ढूंढ के लाएंगे तो हमें रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, दे विल गेट द गुड मनी फॉर दैट इन्वेंशन। तो साइंटिस्ट क्या करते थे, कुछ भी इन्वेंट करके लेके आ जाते थे। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द वन जो ये हमारी हेल्प करता था ये ढूंढने के लिए या ये फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट एवर द एलिमेंट वाज इन्वेंटेड बाय द पर्टिकुलर साइंटिस्ट इज अ ट्रू और अ फॉल्स वन, वो सही है कि गलत है,
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हमें मदद मिलती थी, बिकॉज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज सो मेड विद एक्सपर्टीज कि उस पर बहुत इजीली आप किसी की भी गलती ढूंढ सकते थे. दैट वॉज द मेन थिंग. लेकिन फिर भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस थी. व्हाट वाज द लिमिटेशन? तो उसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो थी उसकी लिमिटेशन की बात करें, सो लिमिटेशन वाज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. बिकॉज हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन क्या है वो मेंडलीव नहीं बता पाए. क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पेज नंबर 84 पे यू कैन सी दिस इन टॉपिक 5.2.2 यू कैन सी दिस थिंग. अब देखो इसमें क्या है, यहाँ हाइड्रोजन और मेटल सोडियम के कुछ रिएक्शन दिए और दोनों की रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है. The way sodium metal react with chlorine, oxygen and sulfur, in the same way hydrogen can also react with chlorine, sulfur and oxygen. And what is the chemical formula is formed in both cases same. That means we can say that hydrogen has a property similar to metal like sodium. यानी हाइड्रोजन के पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज है. लेकिन just wait for some time dear student, because now we see the another part of this hydrogen. That is physical property. See, chemical properties of hydrogens tally with the metals, but when we see its physical property, physical property की बात करें तो physical property हम देखें तो हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है. उसका जो मॉलिक्यूल है वो डायटोमिक है और उसका जो नेचर है वो गैसियस फॉर्म है. नाउ अगर हम पीरियोडिक टेबल की 17 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, ये भी सारे गैसियस डायटोमिक गैसेस हैं. जैसे फ्लोरीन इज F2, क्लोरीन इज Cl2. यानी अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, किसकी? नॉन मेटल्स की. सो नॉन मेटल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, फ्लोरीन F2. तो देखो ये सारी नॉन मेटेलिक गैसेस हैं, नॉन मेटेलिक डायटोमिक गैसेस. सबके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उसमें दो दो एटम्स हैं. सिंगल मॉलिक्यूल के सबके दो दो एटम्स है. तो उसी तरह हाइड्रोजन भी तो H2 है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के भी अंदर दो एटम्स है. जिस तरह से ये सारे गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी तो गैसियस स्टेट में. दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन टैली विथ नॉन मेटल्स. So on the one part chemical property resembles with the metal, on the another part physical property resembles with the non-metal. That means hydrogen purely behave as metal as well as non-metal. So there is a very much confusion dear student कि hydrogen actually है क्या, and this was confusion was not sorted out by Mendeleev. So this was his first limitation. ये उसकी first limitation थी. Now if we talk about the second limitation, so second limitation is isotopes. सेकेंड लिमिटेशन इज आइसोटॉप्स. अगर हम सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो दिस इज आइसोटॉप्स. अब आइसोटॉप्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? आइसोटॉप मींस दो स्पीसीज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर क्या? ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम. और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर की डेफिनेशन होती है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है उसको उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है. उसी तरह किसी एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उसको प्लस करो तो उससे उसका एटॉमिक मास नंबर मिलता है. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तीन आइसोटॉप्स हैं. दैट इज 1H1, 1D2 एंड 1T3, जिसमें H इज हाइड्रोजन, D इज ड्यूटेरियम. D को क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम. और T को बोला जाता है ट्रिटियम. ठीक है, सो सी हाइड्रोजन के पास तीन आइसोटॉप्स है. अब तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है. देखो बिकॉज यहां जो लिखा जाता है दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर. तो देखो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है. लेकिन अगर हम एटॉमिक मास नंबर की बात करें, दिस इज एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, इसको एटॉमिक मास नंबर कहते हैं. तो देखो सबका एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन्स है, ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स है. समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
तो we can easily see that कि hydrogen has 3 isotopes in which all the isotopes are having same atomic number but different atomic mass number. So this is a tragedy with Mendeleev periodic table. Why? Because whatever the periodic table formed by Mendeleev, it was in the increasing order of atomic mass. और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसमें आइसोटॉप्स भी तो आने चाहिए जिनका मास इंक्रीज हो रहा है. भले हाइड्रोजन है लेकिन उनके मास तो अलग अलग है ना. सो दे मस्ट बी हैविंग सम स्पेशल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. उनको कोई ना कोई एक स्पेशल पोजीशन पीरियोडिक टेबल में मिलनी चाहिए थी. लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की ऐसी कोई पोजीशन मेंडेलीव ने दिखाई नहीं थी. क्यों? बिकॉज जब मेंडेलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था तब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी. Nobody knows about the isotopes. That was the reason. So this was the second limitation. Okay. और थर्ड लिमिटेशन की बात करें, ठीक है, थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो वेरिएशन इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. यानी भले मेंडेलीव ने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था इट वाज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, लेकिन सारे एलिमेंट इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे. कैसे? लेट्स सी. देखो मैं आपको मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल बता रहा हूं. देखो इसमें देखो, हियर, यहां ध्यान दो. देखो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 24.31 एटॉमिक मास नंबर. एल्यूमिनियम का देखो 29.9 है तो इंक्रीज हुआ. लेकिन सिलिकॉन का देखो वापस डिक्रीज हो गया. जबकि मेंडेलीव ने क्या कहा कि उसका जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना. तो देखो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होता नहीं है. सिमिलरली यहाँ आयरन, कोबाल्ट और निकल. आयरन एटॉमिक मास इज 55.85, कोबाल्ट एटॉमिक मास इज 58.93 एंड निकल एटॉमिक मास इज 58.7. तो देखो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है बिकॉज कोबाल्ट के पास निकल का एटॉमिक मास तो डिक्रीज हो गया जबकि उसको इंक्रीज होना चाहिए. तो ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इट वॉज डन बाय द मेंडेलीव, बिकॉज कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उस ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी. भले उनका एटॉमिक मास इंक्रीज था, ज्यादा था, तो भी उनको किसी दूसरे एलिमेंट से पहले लिखा गया. क्यों? बिकॉज उनका जो प्रॉपर्टी था वो उस ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच होता था. दैट्स व्हाई. So these were the 3 limitation of Mendeleev, dear students. So dear students, here we finish our lecture of this session. In this session we have learned about the various types of element. Okay, then we learn about the initial contribution made by these various scientists like Dobbener, Newland, and finally the biggest contribution which was made by the Mendeleev in the formation of periodic table. And we also learn about the achievements, limitation of this Mendeleev periodic table. Okay dear students, so here we end. We will see you in our next lecture with the new topic of this chapter. Till then, take care. Bye bye.